सेलिब्रेट नहीं हो रहा है। ओके, यू हैव सीन मी। अगर मेरा केस लेते हैं, आपने मुझे बहुत टाइम से देखा है, राइट? मैं आपके पास हर बार आता था, कुछ एक वाइल्ड ड्रीम लेके आता था, मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है। मैं आज भी वैसे ही आता हूँ, राइट? मुझे तो हमेशा ऐसा लगता था कि यार मैं कुछ करूँगा, बहुत बड़ा करूँगा। मैं भी उस टाइम पे प्रैक्टिकल नहीं था, मेरे पास ना कोई ये नेटवर्क था, ना मेरे आज जो फ्रेंड्स हैं वो फ्रेंड्स थे, ना मेरे पास वो स्किल्स थी, ना कैपेबिलिटीज थी, ना मेरे पास ऐसा पैसा था कि मेरे को करोड़ों रुपए मिल जाएंगे टू बिल्ड अ बिगर बिजनेस, ना कभी मिले। तो but I also thought, and that's what you did. You made yourself capable. What did you do? आपने पहले content create करना शुरू किया. Okay. Instagram में you were at the right place at the right time doing the right thing. Okay. From there you transitioned to starting a podcast. आपकी podcast में भी एक सच्चाई थी. Okay. The title of the podcast is the journey of your curiosity. Yeah. That's why people relate to you. Now you took that journey of curiosity. You interviewed and hosted the best founders in the country to decode. You were asking questions to learn. You were not bringing them on the show to hail them as a hero. Okay. So you learned. People saw that sincerity in you. They saw that intelligence in you. They saw that intellect in you. So when you started House of X, all your angel investors were your ex-podcast guests. Now, you did that preparation process to earn the right for a founder to say, ठीक है मुझे इस शो पे जाना है. That's the preparation I'm talking about. लोगों को वो प्रिपरेशन की जो वहां पर एनर्जी जहाँ चैनलाइज करनी है ना, वहां नहीं करते. लोग पिच डेक पे चैनलाइज ज्यादा करते हैं एनर्जी, वहां से नहीं मिलता रिजल्ट ना. Okay. True. Pitch deck was a 1 month job, but this journey has taken me 10 years. Yes. Today, for any founder who's invested with House of X, they invested in you. Okay. Half of them didn't even hear me. Yeah. They invested in you because you showed them a side of you that they felt, ये काबिलियत में मैं पैसा लगा सकता हूँ. I believe in this. Right? So you earned that. Versus a 21-year-old who's just taken part in his college business fest and who's just inspired by reading excessive business media, which has celebrated only funding, then learning only one skill, which is how to make a pitch deck. Okay. And disconnecting from his own reality of resources, needs, access to capital, access to network. See, it was some guy from Sobo and he would have told me Tetra Pak business. I know, उधर आजू बाजू घर वाला ही कोई डाल दे पैसा. हाँ, 5-10 करोड़ रुपए रेज करना उसके लिए बहुत आसान होता. So the realities of people are different, and therefore their milestones are different. Therefore, for some of them, their end goal is also different. Now, can the end goal change? कि कोई किसी ने ऐसी शुरुआत की कि सिर्फ बिजनेस शुरू करना उनके लिए सब था, and then from there they transitioned and matured to saying नहीं यार घर पैसे लेके जाना है. From there they transitioned and matured saying नहीं यार प्रॉपर्टी बनानी है, हमारे पेरेंट्स नहीं बना पाए तो हम तो बना पाए, let us make a property. Okay. फिर वहाँ से ट्रांजिशन और मैच्योर होके बोला कि चलो यार अब इधर तक आ गए हैं तो एक लेगेसी बना देते हैं. बट ये बहुत स्लो नहीं है यार. मुझे ये बताओ, लास्ट 5 साल में जिसने फास्ट काम किया है इस देश में, उसकी आज हालत क्या है? 2021 में आपने कितने फाउंडर्स के साथ पॉडकास्ट किए? उनकी बिजनेस स्टेटस चेक करते हैं आज. और यही साइकोलॉजी ना बिजनेस कल्चर को मार रही है कि ये स्लो है. भाई किसने कहा कि कौन बिजनेस शुरू करता है कि मुझे 5 साल में सक्सेस चाहिए? अरे बिजनेस ये एक इट्स अ जर्नी, इट्स नॉट अ गेट रिच क्विक मेथड. पीपल हैव मेड इट अ गेट रिच क्विक मेथड. हाँ, इसीलिए बहुत लोग बिजनेस करना चाहते हैं. एंड ऐसे लोग घंटे का कुछ बनाते हैं. यू आर टेलिंग कि यार मतलब कोई बड़ा बिजनेस जल्दी बना ही नहीं सकता. बनाते होंगे, बट वॉट माई बिलीफ इज, अगर किसी ने बनाया भी है ना, उसने ऐसे नहीं बनाया होगा कि मुझे 0 to 1000 करोड़ 5 साल में बनाने हैं. उसका फोकस रहा होगा कि मैं एक अच्छा प्रोडक्ट बनाऊं, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करूं, एक अच्छे सिस्टम्स को इंटीग्रेट करूं उस ऑर्गेनाइजेशन में. जो पैसे के पीछे भागा है उसको पैसा नहीं मिला है आज तक. बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, मैं जिनसे बात करता हूँ, यंग लोग हु कम टू मी
एंड आस्क फॉर एडवाइस और एंजल इन्वेस्टमेंट्स, और इवन जस्ट जब मैं कॉलेजेस में जाता हूँ बात करने, राइट, सबको धंधा बनाना है क्योंकि उन्हें पैसे कमाने फास्ट. तो पैसे कमाने का एक तरीका, लाइक पीपल थिंक दैट बिजनेस बनाना मतलब बहुत जल्दी पैसे बनाना है. हाँ, तो वही तो मिसकंसेप्शन है. क्यों? कि भाई स्ट्राइक रेट जानते हो तुम? आई नो व्हाट यू आर गेटिंग एट एंड आई नो द स्टैट आल्सो, बट स्टिल उन सब बच्चों के बिहाफ पे आई एम ट्राइंग टू डिबेट यू. Okay, so here's all I'm going to say. Okay, you want to do it fast, so ये जल्दी कीजिए आप. Get your product quality or service quality right. Get your model of distribution right. Okay, get your brand and marketing right. Get your sales process right. Get your operational systems right. Get your second line of leaders right. ठीक है. अब ये आप जितनी तो सोचते ही नहीं है लोग. हाँ, तो इसलिए तो बना नहीं पाते. इसलिए तो मैं बनाता हूँ पैसे ये सिखा के. सो बट जो एक एम्प्लॉई है जो 15 साल 20 साल एक फ्रस्ट्रेट हो गया है जॉब कर करके, और उसकी सैलरी 50 से 60 हज़ार 70 हज़ार ही पहुंच पाया है, वो 10 साल हो गए लेकिन वो 50 से 70 से ऊपर ही नहीं जा पा रहा. उसको हर साल 2% 3% इंक्रीमेंट हो जाता है जो इन्फ्लेशन भी बीट नहीं कर पा रहा. गलत कंपनी में काम कर रहा है पहले तो. हाँ, तो वो फ्रस्ट्रेटेड है, राइट. और वो फ्रस्ट्रेटेड है, वो अपने सारे दोस्तों को देखता है, उनमें से 4-5 दोस्त उसके जैसे ही हैं जो उसके साथ फ्रस्ट्रेटेड है. 1-2 हैं जो बिजनेस बना दिया और उनको देखता है कि वाह यार क्या ज़िंदगी चल रही है, बिजनेस वाला तो 2 लाख रुपए महीना कमा रहा है, 10 लाख रुपए महीना कमा रहा है, 50 लाख रुपए महीना कमा रहा है, राइट. अब वो चिढ़ रहे हैं, वो इरिटेटेड हैं, तो वो सोचते हैं कि मैं भी बिजनेस स्टार्ट करता हूँ तो मेरी लाइफ भी बड़ी हो जाएगी. बिल्कुल. तो वो क्या गलत सोचते हैं क्या? नहीं, सोच सही है कि बिजनेस इज अ व्हीकल टू एक्सेलरेट ग्रोथ. नीयत गलत है फिर. तो पैसे के लिए बिजनेस नहीं करना चाहिए? नहीं, पैसे के लिए ही बिजनेस करना चाहिए. फिर बट पैसा इज एन आउटपुट, लाइक आई सेड. तो आप पहले इनपुट पे काम करो ना. इनपुट क्या है? आपका प्रोडक्ट, आपकी स्किल्स, आपकी सिस्टम्स, आपकी स्ट्रैटेजी. देखो, आई गिव सिंपल एग्जांपल, ठीक है. और ये डे इन डे आउट मैं बिजनेस ओनर्स के साथ जब बात करता हूँ यही कहता हूँ कि बहुत सारे बिजनेस ओनर्स को लगता है कि कोई पैसे डाल देगा तो बिजनेस बढ़ जाएगा. समझो आपके स्ट्रैटेजीज खराब है, आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी खराब है, आपके सेल्स चैनल ठीक नहीं है, आपके सिस्टम्स खराब है, कोई ट्रैकिंग नहीं है, कोई डेटा पॉइंट्स नहीं है, कोई प्रोसेस फ्लो नहीं है, आपकी टीम के स्किल्स खराब हैं, आपके भी स्किल्स खराब है, आपको सिर्फ प्रोडक्ट और सर्विस बनाना आता है, मैनेजमेंट करना नहीं आता, हायरिंग करना नहीं आता, मार्केटिंग करना नहीं आता, ब्रांड बनाना नहीं आता, तो आपके स्किल्स में भी काफ़ी सारे गैप्स हैं. अब जहाँ स्ट्रैटेजी, सिस्टम और स्किल मिसिंग है और आप पैसे उठाते हो, उस पैसे का प्रेडिक्टेबली क्या होगा? खराब स्ट्रैटेजी, खराब सिस्टम और खराब स्किल में पैसे डालने से क्या होगा? खराब आउटपुट. बर्बाद ही होना है पैसा भी. तो बस डेट हो गया. सो द सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम्स इन बिजनेस इज नॉट मनी, इट्स कैपेबिलिटी. हम सब ये सीख के बड़े हुए, पैसा पैसा बनाता है. हाँ. पैसा इन्वेस्टर के लिए बनाता है, बिजनेस ओनर के लिए काबिलियत पैसा बनाता है. आप काबिलियत से बिजनेस बनाओ, फिर उस पैसे को घुमा के और पैसे बनाओ, देन यू आर प्लेइंग द इन्वेस्टर गेम. या तो अपने ही बिजनेस में आप इन्वेस्ट कर रहे हो या दूसरों, जहाँ पर फाउंडेशनल कैपेबिलिटी आपने प्रूव कर दी है, या दूसरों के बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो जहां पर उनकी कैपेबिलिटी पे आप रिटर्न कमा रहे हो. तो पैसा नहीं बनाता बिजनेस में, काबिलियत पैसा बनाता है. इंटरेस्टिंग लाइन एंड आई एग्री विद इट फुल्ली. क्योंकि मैं बहुत एज मेरी कम है, बट आई हैव डन मल्टीपल बिजनेसेस टिल नाउ, राइट. एंड मैंने बिजनेस बनाया है जहाँ पर मैंने बिजनेस करके देखा है, जहाँ पे मैंने 0 से स्टार्ट किया है विद लिटरली जस्ट अ फोन. और मैंने कुछ सीख के कुछ बना के धीरे धीरे करके बनाया 0 रुपये से, मान लो 10-15 हज़ार रुपये से. और मैंने बिजनेस बनाया जहाँ पे डे 1 पे मैंने 4 करोड़ रुपए लिए थे और 4 करोड़ से स्टार्ट किया था. और 4 करोड़ वाला बिजनेस मेरा ठप हुआ क्योंकि मुझे लगा कि पैसे उठाओ, बढ़िया 4 करोड़ रुपए मेरा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मज़े आ गए. क्योंकि 4 करोड़ वॉज अ बिग अमाउंट फॉर मी देन, राइट. और वो मेरा ठप हो गया. और जो मैंने 0 से बनाया है वो मेरा बिजनेस ऐसा है कि वो हर महीने 4 करोड़ देने लग गया. लाइक इट्स जस्ट
कैपेबिलिटी एक्चुअली मेक्स बिजनेस, पैसा पैसा नहीं बनाता. जहाँ पे मेरी कैपेबिलिटी नहीं थी वो 4 करोड़ रुपए ज़ीरो हो गए, जहाँ कैपेबिलिटी थी वो ज़ीरो मेरे बहुत करोड़ रुपए हो गए. एंड इट्स जस्ट तो फाउंडेशन वाज वेरी वेरी डिफरेंट. क्योंकि एंड एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर भी था दोनों में, विच जो मैं अब बिलीव करने लगा हूँ, मैं पहले बिलीव नहीं करता था. एक जगह मेरा फोकस था कि सिर्फ पैसे बनाने, कि मेरे को ये 4 करोड़ 40 करना है, 40 400 करना है, 400 4000 करने हैं, और फटाक से मैं IPO लेके जाऊंगा 10 साल में और मैं ये स्टोरी होऊंगा. राइट, वो मैंने करने की कोशिश करी. और एक जगह था जहाँ पे मेरे को सिर्फ ये था कि ओके, मुझे बेस्ट तरीके से जो भी मेरा कस्टमर है उसको इम्प्रेस कैसे करना है, उसको खुश कैसे करना है ताकि वो कहीं और ना जाए. एंड सिर्फ ये माइंडसेट था दोनों जगह डिफरेंस. एंड आई थिंक जो कस्टमर डिलाइट वाला जो फैक्टर था वो वाला बिजनेस मेरा ज़्यादा बड़ा बना वर्सेस जहाँ पे मेरे को सिर्फ पैसे बनाने थे. सो वेरी सिंपल, पैसा कब आता है? जब आप वैल्यू देते हो. तो जहाँ पर आपका फोकस था वैल्यू देने के लिए, वहाँ पर पैसा ऑटोमेटिकली बना. बट जहाँ पर आपका फोकस था पैसे बन जाएंगे, वहाँ पर आपने वैल्यू पे फोकस नहीं किया. तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ ना, यू आर चेजिंग एन इल्यूजन. और मैं उस बिजनेस में ऑप्टिक्स ही चेस करता था. हाँ, कि दुनिया को कैसा दिख रहा है, माहौल कैसा बन रहा है, ताकि बढ़िया मेरा 4 करोड़ का बिजनेस 400 करोड़ जैसा दिखे. एंड दैट was a foundational problem. Thank you so much for watching this podcast till the end. अब आपको 3 चीज़ें करनी है. सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो. नंबर 2, कमेंट्स में हमें बताओ कि और कौन से गेस्ट हैं एंड और ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनमें आप चाहते हो कि हम पॉडकास्ट बनाएं और आपकी उससे ज़्यादा बेटर हेल्प होगी एंड आपको ज़्यादा वैल्यू मिलेगी. एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना जिसकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आएगा, जिसको इस पॉडकास्ट कॉन्वर्जेशन सुनने के बाद लाइफ में हेल्प होगी, क्योंकि एक कॉन्वर्जेशन इज़ इनफ टू चेंज समवन्स लाइफ. I'll see you next time. Until then, keep figuring out.